Hello guys, good evening everyone, good evening all the students, welcome all who are watching this video. Myself Kabir Singh and I am going to teach you class 10 science. Some of the question that is in the sample paper, I have one sample paper with me and I try to solve the question, and I hope that definitely you will get some catchy words, some catch points to build your concept and you can able to solve it nicely in your board examination. First of all, I want to wish you a very happy new year in advance, as well as I want to wish all board examination students who will be going to appear in class 10 board in 2023, most probably at the end of the February or in the starting of March. So let us take some of the question that is MCQs type question, and you have to choose the correct statement. So I am going to take the first question. So this is just a sample paper and I am going to take the first question. So first question is, there is metal X. So there is metal X, and metal X is used in thermite process. So THERMITE, thermite process is that process, that reaction that is in chapter number 3, that is metal and non-metal. So this thermite process is that reaction that is in chapter metal and non-metal, and the metal X which is used in thermite process, when heated with oxygen, then it give an oxide Y. When it is heated with oxygen, it give oxide Y, which is amphoteric in nature. What is amphoteric? This is in chapter number 2, amphoteric oxide. Amphoteric oxide which bear both acid and base, like Al2O3, like ZNO. Okay. So in this question they are asking you that identify X and Y. You have to identify what is X and what is Y, and there are some options. Let us do this question without seeing an option. So metal X, which is used in thermite process, and when it is heated with Al2O oxygen, it form oxide of Y. Let us see what is thermite process. So in thermite process we have Fe2O3, we have aluminium. So what is going on in this reaction? When a burning magnesium ribbon is placed in this reaction mixture, then aluminium and Fe2O3 react in such a way that it form Al2O3 and iron. This iron which is produced as a product in this reaction is molten iron, and that's why this molten iron is used as an application. This reaction is have an application use, that is, this molten iron is used to fill the gap between railway track. So when there is a gap in the railway track that is widened, so it is used to fill that gap. So that's why this is called thermite process, where Al, that is aluminium, react with Fe2O3 to form Al2O3 and molten iron. Now let us identify what is X in this. Now if you look at here, then there are two elements, Fe and Al. So if I try to take Fe, simultaneously if I try to take aluminium, and if I try to react it with oxygen, then the product is Al2O3. In this case the product is Al2O3, while in this case the product can be iron oxide, and we know that iron oxide is not amphoteric in nature. It means that Al plus O2 gives Al2O3, that is Al2O3, and this is that aluminum oxide which is amphoteric in nature. So according to these two reactions, we get a point that the element X of which they are talking about, element X, that is metal X, of which they are talking about in thermite process, is aluminium. So when aluminium reacts with oxygen, it forms Al2O3. So our answer is that in this case metal X is aluminium and Al2O3 is Y, that is oxide of aluminium. So this is how we can check. So the statement is very clear. Metal X is used in thermite process, aluminium is used in thermite process. Now when it is heated with oxygen, it forms oxide of Y. Oxide of Y means Al2O3. And identify X and Y. So we have identified it that
X is aluminium and Y is Al2O3. It form Al2O3, that is an oxide Y. They give a name Al2O3 as Y, which is amphoteric in nature. So the option is, in the option A, they have written Zn and ZnO. Zn and ZnO is not in this reaction, so it is completely wrong. B, they are giving Mg and Al2O3. Mg and Al2O3. So it is again not in this reaction. Mg is just used to initiate the reaction. Now third is aluminium and Al2O3. This is, we got it here, aluminium and Al2O3. So the answer is option C. Well, let us see the fourth option also, Fe and Fe2O3. So which is the correct option? Which is the correct option? This one. This one is the correct option, because we have just, look here, we have just done it, that in the thermal process aluminium is the metal whose oxide is amphoteric in nature. That's why the answer is Al and Al2O3. Now going forward, we have another question. Moving on to the next question, that is question number 12. Pentane has molecular formula C5H12. They are talking about pentane, and they are saying that the molecular formula of pentane is C5H12. Now it has dash number of bonds. So there are four options, A, B, C, D. So they are saying that there are 4 covalent bonds in pentane, 4 covalent bonds. B option, they are saying that there are 12 covalent bonds. In third option, they are saying that there are 16 covalent bonds, and in this D option, they are saying that there are 17 covalent bonds. Let us see how many covalent bonds are there. So if I try to make a diagram, structure diagram of covalent pentane, it will look like this: C, 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 and this one. How many carbon? 1, 2, 3, 4, 5. Now if you look at the structure of pentane, then there are 5 carbon and 12 hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So let us start the counting of covalent bond. If you want to try, if you try to count from the left hand side, count it. If you want to count the number from right hand side, you can count it. It is up to you from where you want to start it. Let us count. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, 8, this is 9, this is 10, this is 11, this is 12, this is 13, this is 14, this is 15, and this is 16. So you have just checked it that there are 16 covalent bond. So the answer is 16, that is C1. Option C is right. Pentane, that is C5H12, is having 16 covalent bonds, that are single covalent bond. Okay, these all are single covalent bond. Now moving on to the next question, question number 13. So in question number 13, they are saying you that when sodium hydrogen carbonate and sulfuric acid are mixed, a gas is evolved. Let us take a formula. When sodium hydrogen carbonate, NaHCO3, sodium hydrogen carbonate. What is the another name of sodium hydrogen carbonate? It is sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. Okay. So what is the another name of sodium hydrogen carbonate? Sodium bicarbonate. So they are saying that when sodium hydrogen carbonate react with sulfuric acid, what is the formula of sulfuric acid? H2SO4. What is the formula of sulfuric acid? H2SO4. So they are saying that when these two reactants react, they are mixed together, a gas is evolved. One gas is evolved. Okay? And which of the following statement is true about the gas which is evolved? Means इस रिएक्शन में जब करेंगे तो एक गैस निकलेगी, उस गैस का बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए, वो पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट सही होगा? तो पहले हम देख लेते हैं. ये चैप्टर नंबर 2 में एनसीईआरटी की बुक चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी में लेफ्ट पेज में नीचे की तरफ 2 रिएक्शंस दे रखी है. मैं आपको पहले बता देता हूँ हिंट, वेरी इंपॉर्टेंट हिंट जो आपको हमेशा याद रखना है. कोई भी मेटल का कार्बोनेट, एनी मेटल कार्बोनेट और एनी मेटल बाइकार्बोनेट, कोई भी मेटल का कार्बोनेट या कोई भी मेटल का बाइकार्बोनेट, व्हेनेवर इट रिएक्ट विद एसिड,
जब भी ये किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां देख लीजिए जरा, पहले इसको ऊपर कर लेते हैं। व्हेनेवर इट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, हमेशा दो चीजें तो कॉमन मिलने वाली है, आप ध्यान रखेंगे। टू थिंग्स आर वेरी कॉमन विच आर ऑलवेज फॉर्म्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, और जो भी कुछ बचेगा वो सॉल्ट बचेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं। इन एनसीईआरटी इन द टेक्स्ट बुक द सेम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है या इन टेक्स्ट क्वेश्चन में कोई है, अभी मुझे क्लियर याद नहीं है। देयर इज अ क्वेश्चन दैट इफ डाइल्यूट HCl इज ड्रॉप्ड ऑन द एग शेल, एग शेल के ऊपर बात हो रही है, एग शेल है अंडे का छिलका, अंडे का छिलका किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का। पता लगाओ, ये मेटल है? यस मेटल है। ये मेटल है? यस मेटल है। CO3 इज व्हाट? कार्बोनेट। CO3 इज व्हाट? कार्बोनेट। कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर उसने क्या डाला? HCl। वेरी गुड। अब आप याद लगा लीजिए हिसाब, CaCO3 प्लस HCl। चेक कर लीजिए, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तीन चीजें तो बनने वाली है, दो चीजें कॉमन है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाँ जी बनेगा, आइए चेक कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर बनेगा, हाँ जी बनेगा, बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा जी। देख लेते हैं, ये लो जी बन गया, और देख लो, छोटा कर दे इसको, क्लियर आ जाएगा। अब देख लो जी, बन गया, बन गया जी। अब क्या बनने वाला है? अब क्या बनने वाला है? आओ दिखा दूं आपको। इधर देखो जी, इधर देखो, ये H, यहां से O आया होगा, 2 लगा दो यहां पर, ये तो H2O हो गया। CO2 भी हो गया यहां से, देखिए जी CO2 आ गया। अब क्या बच रहा है? Ca बच रहा है, Cl बच रहा है, CaCl2 बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। और ये जो 2 नंबर है, ये यहां से आया बैलेंस करने पर। तो क्लियर हो गया ना कि दो गैस तो बनने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला और एक वाटर बनने वाला है, और साथ में CaCl2 बनेगा। अब यही बात हम जरा इधर देख लेते हैं, इधर देख लो जी, इधर देख लो। अब इधर देखेंगे आप तो, यहां देख लो जरा, इधर क्या बनने वाला है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम या मेटल बाइकार्बोनेट। एसिड है, एसिड है, क्या बनेगा? गैस लिख दो फटाफट, फटाफट गैस लिख दो, कौन सी बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनेगा? वाटर। लिख दिया। अब क्या बनने वाला है? NaSO4, Na2SO4 बनेगा। और एक बार और बता दूं मैं आपको, इसमें बैलेंस करने का भी कोई झंझट नहीं है। देखिए Na यहाँ पे SO4 है, Na2 यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं, इधर Na2SO4, यहाँ पे H2 हो जाएगा, यहाँ पे CO2 हो जाएगा। अब बाकी की चीज आप बैलेंस कर लीजिए भाई, देख लीजिए जरा कितना बैलेंस करने की जरूरत है। देखिए जरा, Na हो गया, H कितना है यहाँ पे? 2 और 2 4, यानी यहाँ 2 लगा दो। अब O कितना हो गए? 2 3 6 और यहाँ 4 10, 2 2 4 4 और 4 8, यानी कुछ और गड़बड़ी यहाँ पे, कार्बन यहाँ लगा दो लो। अब पूरा हो गया, 4 2 6 6 और 4 10, कंप्लीट। तो यहां पर अब स्टेटमेंट सुन लेते हैं, स्टेटमेंट क्या है? वो कह रहे हैं यहाँ पे कौन सी गैस बनी? कार्बन डाइऑक्साइड। वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन पढ़ने से पहले आपको बताया तो कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट आपने याद किए, बहुत अच्छी तरीके से याद करें। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विश कर देती है, कोई बर्निंग स्प्लिंटर उसके पास ले आओ। दूसरा, लाइम वाटर में डालोगे, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। यही है, अब यहाँ चेक करते हैं। कह रहे हैं व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ गैस इज पास थ्रू कैल्शियम कार्बोनेट देन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, चैप्टर नंबर 2 में ही दे रखी है। पता क्या कह रहे हैं? देखिए वो कह रहे हैं आपके पास लाइम वाटर है, लाइम वाटर का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आप डाल दो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दो, क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट कलर का बनेगा, इसीलिए हमने बोला लाइम वाटर कैसा हो गया? मिल्की। अच्छा जी, चलो ये तो हो गया। वो कह रहे हैं अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया आपने इसमें तो क्या बनेगा? इसमें बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि थोड़ा सा स्पेरिंगली सॉल्युबल है। वर्ड है स्पेरिंगली सॉल्युबल, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है। ज्यादा पास करोगे कलरलेस हो जाएगा, दोबारा मिल्की नहीं रहेगा। पहला स्टेटमेंट तो सही है कि अगर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी, अगर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में से पास कर दिया, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास करी लाइम वाटर में, क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, स्पेरिंगली सॉल्युबल है। ये स्टेटमेंट सही है, हमें तो सही लग रही है भाई, स्टेटमेंट सही है। ठीक है जी, और देख लेते हैं। इट हैज अ पंजेंट स्मेल, कोई पंजेंट स्मेल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की पंजेंट स्मेल है ही नहीं, यानी सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल गलत है। सेकंड स्मेल, पंजेंट स्मेल बिल्कुल नहीं है जी, पंजेंट स्मेल इसकी, ठीक है जी, पंजेंट स्मेल तो क्रॉस कर दीजिए आप, ये सही है। थर्ड ऑप्शन बोल रहे हैं वो कि भाई
बर्निंग स्प्लिंटर को एक्सटिंग्विश कर देता है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी जलती हुई चीज ले आओ यहाँ पर, ये एकदम उसको बुझा देगा। एक्सटिंग्विश बर्निंग स्प्लिंटर, बर्निंग स्प्लिंटर को तो ये बिल्कुल बंद कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है जी, ये भी सही है हमारा। कह रहा है लाइम वाटर में पास करते हैं तो ये येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। बिल्कुल गलत है भाई, अभी तो पढ़ा व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब व्हाइट कलर का बनता है, CaCO3 बनता है व्हाइट कलर का। तो ये तो गलत हो गया जी। वो कह रहे हैं इसको अगर लाइम वाटर में से पास करोगे, लाइम वाटर में से किसको पास कर रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड पास इनटू लाइम वाटर, इट टर्न येलो। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, व्हाइट बनता है। ये तो गलत हो गया जी। कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको? पहला और तीसरा ऑप्शन सुनिए। ओनली थर्ड? नहीं जी, हमें तो फर्स्ट भी दिख रहा है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड? नहीं जी, वो भी नहीं है। सेकंड तो गलत है, थर्ड तो सही है। सी है थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ? जी नहीं, सेकंड तो नहीं है इसमें। डी ऑप्शन है थर्ड एंड फर्स्ट, बिल्कुल सही है जी, थर्ड एंड फर्स्ट। ठीक है जी, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बोर्ड में क्वेश्चन बन जाता है इसका। ठीक है, चलिए आज का एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जरा हम आज। ठीक है, रिवीजन करा देंगे फटाफट कर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जितने भी वॉलंटरी एक्शन है, वॉलंटरी मतलब जो हमारे विल में है, मतलब हमारे कब्जे में है, मतलब हमारे बस में है। मान लो मैं आपको ना हाथ हिलाना है ऐसे, हाय हेलो बाय, तो मेरे कंट्रोल में है। तो अपने ब्रेन का ये कौन सा वाला पार्ट है जो वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है? मुझे यहाँ खड़ा होना है, मैं यहाँ खड़ा होऊंगा। मुझे यहाँ खड़ा होना है, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। मुझे आपको पेपर दिखाना, लीजिए, देख लीजिए जी पेपर। तो अब ये सैंपल पेपर आपने देख लिया, मेरे हाथ का मूवमेंट देख लिया, मेरे कंट्रोल में था। तो वॉलंटरी एक्शन जो भी कंट्रोल करता है ब्रेन का पार्ट, उसको बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम। तो ऑप्शन कह रहा है ऑल द वॉलंटरी एक्शन ऑफ द बॉडी कंट्रोल बाय, वो ऑप्शन दे रहे हैं सेरिब्रम, पोन्स, मेडुला या सेरिबेलम। और सेरिबेलम तो बॉडी के मूवमेंट क्या करता है? बॉडी के मूवमेंट को, लोकोमोशन को, हमारे पोस्चर को मेंटेन करके रखता है। और साथ में कुछ इनवॉलंटरी एक्शन है जिसको कंट्रोल करता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि आपके पास जो भी इनवॉलंटरी एक्शन है, एग्जांपल मेडुला का भी है, ठीक है, और सेरिबेलम का भी है। पोन्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो हमारे पास आंसर तो होने वाला वो क्या है? ये सेरिब्रम। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ हमने 4 क्वेश्चन लिए। आइए फटाफट शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं एक बार, फटाफट आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे यहाँ पे। चलिए फटाफट क्वेश्चन बता दीजिए। पेंटेन, व्हाट इज द फॉर्मूला पेंटेन? C5H12। कितने बॉन्ड थे उसमें? 16 बॉन्ड थे, 16 कोवलेंट बॉन्ड। थर्मोनेट प्रोसेस किसके बीच में था? एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड। बन क्या रहा था? बन क्या रहा था? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मोल्टेन आयरन। और मोल्टेन आयरन का यूज था रेलवे ट्रैक के गैप को फिल करना। तीसरा क्वेश्चन था हमारे पास कि अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, एक गैस निकालेंगे। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट गैस? व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट गैस? पहले तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। कैसे आया? कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन ऑक्साइड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। बर्निंग स्प्लिंटर लेके आओगे तो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। दूसरा बात, लाइम वाटर में मिल्की कर देगा। मिल्की किस वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ज्यादा एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दोगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और तीसरा लास्ट क्वेश्चन था, वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? इट इज सेरिब्रम। ओके, चलिए तो ये आज का आपकी क्लास है। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ और पेपर लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ये पेपर, सैंपल पेपर इसी तरीके से आपके यहाँ दिखेंगे और आप उसको देखेंगे ताकि आपका टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा और आप इजीली उन क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व कर पाएंगे। सो आई होप दैट you like this video, you like the question, the way of solving the question, and if there is any query or doubt, please mention in the comment box. Okay, I will try to take all the question of this sample paper one by one. Okay, till then, take care of your parent, take care of brother, sister and everyone. Have a good health, have a good day ahead. Thank you so much.